سو 18th سینچری لٹریچر جو ہے ہم نے 17th سینچری لاسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کر لی تھی. تو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں اس سینچری کے بارے میں، کیا اوور آل ایک لیکچر ہو جائے یا ایک بیک گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر ایک سب پارٹ بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گڈ ہوگا. اسپیڈ ہمیں تھوڑی بہتر رکھنی ہوگی کیونکہ ایگزام آپ کے قریب ہے. سو 18th سینچری انگلینڈ از کالڈ دی کلاسیکل ایج اور اگسٹن ایج ان لٹریچر. اسی ایج کو ہم کلاسیکل ایج کہتے ہیں. کنگ اگسٹس کے نام پہ اس ایج کو اگسٹن ایج بھی کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ اگسٹن کنگ، آپ کو پتہ ہے کنگ اگسٹن کا ریفرنس آپ نے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا بھلا، کہاں میں نے اس کنگ کے بارے میں ذکر کیا تھا؟ یہ تھا جی جولیس سیزر کے اندر، جب ہم نے شیکسپیئر کا پلے دیکھا تھا جولیس سیزر، اور اس کے بعد ہم نے شیکسپیئر کا پلے دیکھا اینٹنی اینڈ کلیوپیٹرا. تو جو کلیوپیٹرا ہیں، جن سے اینٹنی اور کلیوپیٹرا کی لو سٹوری ایک سائڈ پہ تھی، اور جو سول وار تھی جو شاید کلیوپیٹرا کی سازش سمجھی جاتی ہے، وہ تھی اوکٹیویس اگسٹس، یعنی اوکٹیویس اگسٹس جو ایمپرر تھا اس کے درمیان اور اینٹنی کے درمیان یہ لڑائی تھی. یہ ایک سول وار تھی کیونکہ ود ان دی امپائر جو ہے وہ لڑائی ہو رہی تھی، دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے یہ لوگ. تو اینٹنی اور کلیوپیٹرا میں الٹیمیٹلی آپ کو یاد ہوگا یہ اوکٹیویس اگسٹس سیزر ہیں جو الٹیمیٹلی سکسیسفل ہوتے ہیں. پورے روم پہ اب ان کی حکومت ہوگی، اور وہ وہی ہیں جو کلیوپیٹرا کو بولتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں روم کی جو سڑکوں پہ نا تمہیں زنجیریں پہنا کر تمہیں پریڈ کروائی جائے گی وہاں پہ. تو اتنی جو ہے ذلت تمہیں برداشت کرنی پڑے گی تو پھر تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے. لیکن وہ اس سے پہلے ہی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مجھے خود سے ہی مر جانا چاہیے، لہٰذا وہ سانپ منگواتی ہے اور زہریلے سانپوں سے کٹوا کر خود کو یعنی سوسائڈ کرتی ہے اس طریقے سے. کلیوپیٹرا جو ایجپٹ کی پرنسس تھی، ایجپٹ کی، مصر کی، جیسے ہمارے اردو میں کلوپترا آپ نے سنا ہوگا، یہ اس طرح سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے. سو اینٹنی اور کلیوپیٹرا کی سٹوری میں جو دوسری طرف وکٹوریس پارٹی تھی اوکٹیویس اگسٹس، یہ وہی ہیں، یہی اگسٹس سیزر ہیں جو بعد میں اگسٹس سیزر بنے. اوکٹیویس ان کا پرسنل نیم ہے. تو انہی کا جو زمانہ ہے نا اس کو گولڈن پیریڈ آف رومن امپائر کہا جاتا ہے، اسی اگسٹس سیزر کے ٹائم کو، کیونکہ اس ٹائم پہ بڑے بڑے آتھر نے لکھا، جیسے ورجل نے لکھا، جیسے ہورس نے لکھا، جیسے لیوی نے ہم نے کہا ہسٹری لکھی، اس طرح جیسے اووڈ نے میٹامورفوسس لکھی. تو یہ سارا جو بہت زیادہ کریٹیو کام ہے وہ اگسٹس سیزر کے ٹائم پہ ہوا ہے. لٹریچر کا جو کریٹیو کام ایک ہی ٹائم پہ کافی سارے جوائنٹ تھنکر اور آتھرز ایک ٹائم پہ ہی وہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو وہ ایک کلاسیکل ایج ہے، رومن کلاسیکل ایج ہے. تو اسی نام سے نا اب یہ جو انگلش کلاسیکل ایج ہے، یاد رکھنا رومن کلاسیکل ایج تو اگسٹس ایج ہے، اس کو بھی کلاسیکل ایج کہتے ہیں اور اگسٹس ایج بھی کہتے ہیں. It is called the age of the good sense and age of the reason. It is also called the age of the good sense and the age of the reason. اس کا جو ریئیکشن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پیورٹینس کے بعد جو جان ڈرائیڈن نے جس کی بنیادیں رکھ دی تھی، کیونکہ سائنس ڈیولپ ہو رہی تھی، گروتھ آف دا سائنس کے ساتھ ایک نیو میڈیم ریکوائرڈ تھا. انگلش میں چونکہ سائنس تو نہیں لکھی گئی تھی اس سے پہلے کسی زبان میں بھی، تو سائنس کیا جو میڈیم تھا نا وہ ایک پریسائز پلین بڑی زبردست قسم کا ایک ایزی قسم کا ایکسپریشن ہونا چاہیے تھا جس سے بات کنوے ہو سکے، یعنی جو ریزن کو اپیل کرے، ایسی رائٹنگ چاہیے تھی. گڈ سینس ہو، پرپورشن ہو، ایگزیکٹ رائٹنگ ہو، اور کوئی بہت زیادہ ایگزیجریشن اور ہائیلی جو ہے وہ اس میں میٹافر اور سیملیز کی بھرمار نہ ہو، اور کوئی بناوٹی قسم کی چیزیں نہ ہوں. تو ایک سمپل سی لینگویج ایک ریکوائرڈ تھی. تو انگلش کو یہ چیز دی ہے جان ڈرائیڈن نے، اور جان ڈرائیڈن سے آگے یہ پھر کنٹینیو کرتے یہ پورا
जैसे मैंने आपको बताया था ना 120 ईयर ये अब चलेगा, जो ट्रेंड वो सेट कर रहा है, जो उसने सेट किया, तो अगला 18th सेंचुरी सारा उसको वो फॉलो करेंगे। तो इस वजह से भी इसे एज ऑफ गुड सेंस और एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, क्योंकि साइंस डेवलप हुई थी और लोगों में भी, लोगों का जो बिहेवियर और एटीट्यूड था चीज़ों के बारे में, वो अब प्योरिटन नहीं रहा था। एलिजाबेथन भी नहीं रहा था, उसके बाद फिर प्योरिटन एटीट्यूड आया, वो भी नहीं रहा था। अब तो उल्टा उसका रिएक्शन आ गया था, और अब लोग जो हैं वो चीज़ों को फिलोसफिकल एंगल से, साइंटिफिक एंगल से और अक्ल और दिमाग मतलब लड़ाने लग गए थे कि हम खुद समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये लोगों का ना सिर्फ बिहेवियर बदला था, बल्कि एक एकेडेमिया के अंदर जब साइंस आ चुकी थी, और साइंस ने लोगों के मिजाज पे भी असर डाला था, ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर भी। और इसकी एक वजह मोनार्की का रोल भी था, जो कि वो रियलिज्म लेके आए थे फ्रांस से, और न्यू टाइप ऑफ जो राइटिंग थी, जो सोशल क्रिटिसिज्म था और सेटायर हम देखेंगे आगे डेवलप होगा। तो इसी वजह से इस एज में जो है ना वो प्रोज डोमिनेट करता है, इसी एज में नॉवल की बर्थ होती है। दो ड्राइडन बिलोंग टू द 17th सेंचुरी, ऑल दो सेंचुरी चेंज हो चुकी है, अब 18th सेंचुरी स्टार्ट हो गई है, 17th सेंचुरी में ही ड्राइडन था, आपको पता है, लास्ट पढ़ा उसका। ही इज आल्सो इंक्लूडेड इन द क्लासिकल और द अगस्टन एज। तो हम अगर न्यू क्लासिकल या क्लासिकल, इसको न्यू क्लासिकल भी कहते हैं, ये ऐसे स्यूडो क्लासिकल भी समटाइम कहते हैं, क्योंकि ये न्यू क्लासिकल का मतलब है, क्योंकि ओरिजिनल क्लासिकल तो वही रोमन क्लासिकल एज थी या ग्रीक क्लासिकल एज है, तो ये कौन सी, ये फिर न्यू क्लासिकल, या ये दो तीन वजूहत से इनका नाम ये पड़ा हुआ है। आगे थोड़ा सा आगे हम इसको दोबारा से देख लेंगे, आपको ये बात क्लियर हो जाती है थोड़ी देर के अंदर कि आखिर इस सब का क्या मतलब है, इतने नाम क्यों है इसके। Augustine, classical or the Augustan age, as during his time the characteristics of his age had manifested themselves and he himself represented them to the great extent. तो जॉन ड्राइडन का जो टाइम है, जैसे एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं, उसको भी हम इस एज में शामिल कर लेंगे, क्योंकि बुनियादें तो उसी वक्त से पड़ गई थी। अदर ग्रेट लिटरेरी फिगर्स हु डोमिनेटेड दिस एज सक्सेसिवली वर पोप एंड डॉक्टर जॉनसन। दो और बड़े नाम है, तो हम इस एज को देखा जाए ना, तो तीन राइटर हम चुन सकते हैं इस बड़ी एज के, जो 120 ईयर्स के राउंड अबाउट उस पर प्रिवेल कर रही है। तो एक में हम क्या गिनेंगे, बड़ा आथर जो है वो जॉन ड्राइडन रहा है, 30-40 साल तक वो रहे हैं। और फिर एज ऑफ पोप आ जाएगी, अलेक्जेंडर पोप, जो रेप ऑफ द लॉक जिन्होंने लिखी थी, जिनका सिलेबस में आप लोगों ने वर्क पढ़ रखा है। सो एज ऑफ द पोप जो है वो चलेगी 40 साल के लगभग। और फिर आखिरी जो इसका फेज है वो है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन की बातों की बाज़गश्त आपको पता है, हम पास्ट में भी देखते रहे क्योंकि लिटरेचर बाद में चूंकि कंपाइल हुआ है, तो उनकी क्रिटिसिज्म हमें सुनाई देती रहती है। तो ये बहुत बड़े क्रिटिक थे। तो हम इसे तीन हिस्सों में, यानी एज ऑफ रीजन को, एज ऑफ गुड सेंस को, क्लासिकल एज को, न्यू क्लासिकल एज को, अगस्टन एज को, देखिए इसके कितने नाम हैं, ये सारे याद रखिएगा, ये सारे इन्हीं के नाम हैं। हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी तीन सब एजेस में डिवाइड कर सकते हैं, स्टडी के लिए, आसानी के लिए, समझने के लिए। एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, जिसमें से एक आप पढ़ चुके हैं, एज ऑफ ड्राइडन, जिसमें ड्राइडन ही सब कुछ है, आपको पता है। सिवाय ड्रामा में विलियम जो कॉन्ग्रीव हैं, कॉमेडी में वो थोड़ा सा इक्वल होते हैं ड्राइडन से, और किसी हद तक सरपास भी करते हैं ड्राइडन को। और फिर ड्राइडन जो है वो प्रोज के अंदर जॉन बनियन, थोड़ा सा कंपटीशन उनके साथ इनका आता है। अदरवाइज तो पोइट्री, प्रोज और ड्रामा, तीनों जॉनरास के अंदर ड्राइडन डोमिनेट था, इवन क्रिटिसिज्म में भी ड्राइडन ही को, इवन डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि ड्राइडन जो है वो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि क्रिटिसिज्म के इसने प्रिंसिपल्स तय किए हैं, रूल्स तय किए हैं, और सही मीनिंग भी देखा जाए तो क्रिटिसिज्म किया है। इससे पहले जो क्रिटिसिज्म की बुक उससे पहले आ रही है, वो कौन सी थी, वो डिफेंस ऑफ पोइजी थी भाई, सिडनी। तो डॉक्टर जॉनसन के मुताबिक वो एक ओवरऑल एक जनरल किस्म का एक डिफेंस था, उसमें कोई प्रिंसिपल तय नहीं किए गए थे क्रिटिसिज्म के, कि बाकायदा से क्रिटिसिज्म की इब्तिदा की गई, ऐसा नहीं था कुछ, वो एक जनरल डिफेंस है। तो डॉक्टर जॉनसन का ख्याल है कि सही तौर पे जो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म जिसे हम कह सकते हैं वो ड्राइडन है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि ये है एज जो तकरीबन 120 साल पे मुहित है राउंड अबाउट, और तीन हिस्सों में हम इसे डिवाइड करेंगे, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन। तो एक तो आप लोगों ने पढ़ रखी है। हाँ, एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन में एक नई चीज़ आ जाएगी, एक नया जॉनरा भी आ जाएगा, जिससे पहले किसी एज में नहीं था। पहले तो हम प्रोज, पोइट्री और
और ड्रामा को देखते थे, या थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी इतना नहीं आया अभी तक। तो अब एक नया जॉनरा भी साथ साथ चलेगा हर एज में अब आगे, वो है नॉवल, क्योंकि बर्थ ऑफ द नॉवल जो है वो एज ऑफ पोप में हो रही है। In this chapter, which is devoted to the 18th century literature in England, we will deal with the ages of the Pope and Johnson, क्योंकि पहली तो हम देख चुके हैं ना, the age of Dryden has already been dealt with in the preceding chapter entitled the Restoration Period के नाम से हमने इसको स्टडी कर लिया, और बहुत ही आसान थी, उसमें डाटा बहुत इजी है, याद रखना भी बहुत आसान है। याद रखें, जब चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और रीजन का थोड़ा यूज करते हैं, तो वो चीज़ें फिर याद रहती हैं मेमोरी में। इन 18th century is called the classical age in English literature on account of the three reason। तीन वजूहात हैं जो हम देख लेते हैं जिनकी वजह से हम इसे क्लासिकल एज कह रहे हैं। आखिर क्यों क्लासिकल एज है? काम तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया, आपको याद होगा एलिजाबेथन पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा रिच पीरियड है, फ्रूटफुल पीरियड है, सबसे ज़्यादा अबंडेंटली लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, तो फिर हम इसे क्लासिकल क्यों कहते हैं? इन द फर्स्ट प्लेस तीन वजूहात हैं। क्या जी? नंबर वन, द टर्म क्लासिक रिफर्स टू द जनरल अप्लाइज टू द राइटर्स ऑफ द हाईएस्ट रैंक इन एनी नेशन। This term was first applied to the works of the great Greek and Roman writers like Homer and Virgil। ठीक है, क्लासिक हमेशा उनके लिए यूज किया जाता है, ग्रेटेस्ट जो ऑथर्स होते हैं किसी भी नेशन के। जैसे ग्रीक के सबसे बड़े ऑथर को हम कहेंगे होमर हैं, और रोम के सबसे बड़े वर्जिल हैं, तो ये क्लासिकल हैं, इनको कहेंगे। As the writers of the 18th century in England tried to follow the simple and the noble methods of the great ancient writers, they began to be called classical writers। एक वजह ये है कि उन्होंने खुद को भी लेबल दिया है। मजे की बात है कि ये राइटर खुद को भी क्लासिकली कहते थे, अलेक्जेंडर पोप और जॉनसन और ड्राइडन जो है, क्योंकि ये कहते थे कि हम लोग क्लासिकल जो मॉडल्स हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी क्लासिकल हैं। न्यू क्लासिकल चले हमें कह लें, लेकिन हम क्लासिकल हैं क्योंकि वी फॉलो द नोबल आर द गोल्डन रूल्स सेट बाय द noble are the golden authors, are the classical authors। So second क्या है? In the second place, in every national literature there is a period when a large number of the writers produce work of the great merit। Such a period is often called the classical period or the age। For example, the reign of Augustus is called the classical age of Rome, and the age of Dante is called the classical age of the Italian literature, as during the 18th century in England there was an abundance of the literary productions, the critics named it classical age in English literature। तो दूसरी वजह ये है, एक तो उन्होंने खुद कहा कि हम क्लासिकल रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी वजह ये बनी कि कुछ क्रिटिक्स ने भी इस एज को क्लासिकल कहा, क्योंकि इस एज में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे पैदा हो गए थे जो क्लासिकल रूल मॉडल को फॉलो करते हुए काफ़ी अबंडेंटली लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, स्पेशली नॉवल की भी बर्थ हुई इसमें। तीसरी वजह क्या है? In the third place, during this period, the English writers rebelled against the exaggerated and fantastic style of the writing prevalent during the Elizabethan and the Puritan age। उस दोनों एज में जितना भी काम किया गया, आपको पता उसमें एग्जैजरेशन और फैंटेसी बहुत है। एग्जैजरेशन और फैंटेसी उनका ट्रेडमार्क था। एंड दे डिमांडेड दैट द पोएट्री, ड्रामा एंड द प्रोज शुड फॉलो एग्जैक्ट रूल्स। ये जो एग्जैक्ट रूल्स फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशन, क्लासिकल मॉडल को फॉलो करना है, ये क्लासिक्स का काम है। इन दिस वे देर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच राइटर्स, स्पेशली बाय द बोलियो एंड द रैपिन। तो ये जो फ्रेंच ऑथर्स है जो खास तौर पे वो भी क्लासिकल रूल्स को आगे फॉलो कर रहे थे, who insisted on precise method of the writing poetry and who professed to have discovered their rules in the classics of Horace and Aristotle। बोलियो और रैपिन जो है ना खुद क्लासिकल है, यानी वो भी न्यू क्लासिकल टाइप राइटर हैं जो कि फॉलो करते हैं हॉरिस और एरिस्टोटल के सेट क्लासिकल रूल्स को। तो जब इन्होंने फॉलो किया तो क्रिटिक्स ने फिर इनको नाम दिया क्लासिकल्स का। तो ये वो तीन वजूहात हम कह सकते हैं जिनकी वजह से ये जो एज है अगस्टस एज या क्लासिकल एज हम इसको कहते हैं, और न्यू क्लासिकल कहलाने की ये वजह उनसे अलग करने के लिए। और कुछ क्रिटिक्स ने फिर स्यूडो क्लासिकल भी कहा इनको, ये भी आगे हम देखते हैं, ये टर्म भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। But as the 18th century writer in English followed the ancient classical writers,
only in their external performance and lacked their sublimity and the grandeur, their classism is called the new or pseudo classism, the false or the sham classism. कुछ ने तनकीदी तौर पे इनको कहा कि इन्होंने आउटवर्ड कॉपी तो किया है एंशियंट रूल्स को, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ थी, जो सब्लिमिटी थी, जो ग्रैंडियर था, जो इनसाइड नोबिलिटी थी, उसको तो ये कॉपी नहीं कर सके, तो इसलिए इनको स्यूडो क्लासिज्म का भी नाम दिया गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको काफ़ी क्लियर रहा होगा ये बैकग्राउंड के आखिर इसके इतने नाम क्यों हैं, उनका क्या मतलब है। बट एज द 18th सेंचुरी हमने कहा कि फॉलो करते हैं और कुछ के ख्याल में कि ये अपरेंट सरफेस लेवल पे इमिटेशन है, इसलिए कुछ क्रिटिक्स ने क्या कहा, ये स्यूडो क्लासिज्म। स्यूडो का मतलब होता है false or sham classes. As the term classical age is therefore too dignified for the writers of the 18th century in England, who imitated only the outward trappings of the ancient classical writers and could not get at their inner spirit, this age is perfectly called the Augustan age. This term was chosen by the writers of the 18th century themselves, who saw in Poe, Addison, Swift, Johnson, Burke, ये लोग हम इस एज में देखेंगे इनको, the modern parallels to the Horace, Virgil, Cicero and other brilliant writers who made Roman literature famous during the reign of Emperor Augustus. तो एम्परर अगस्टस के टाइम में कौन कौन से बड़े बड़े राइटर थे, जैसे मैंने बताया होरेस थे, वर्जिल थे, इवन ओविड का नाम भी है, सिसरो हैं, लिवी हैं, इस तरह हमने जितने भी पढ़े थे वो सारे क्लासिकल हैं। और इस एज में हमें नजर आएंगे बर्क, हमें नजर आएंगे जॉनसन, हमें नजर आएंगे स्विफ्ट, एडिसन, मिलेंगे हमें अलेक्जेंडर पोप। तो ये अपने आप को ये कहते थे कि हम चूंकि उनको फॉलो करते हैं तो हम भी क्लासिकल राइटर्स हैं। The 18th century is also called the age of reason or the age of good sense. ये थोड़ी सी इस पर पहले हमने बात की, because the people thought that they could stand on their own legs and be guided in the conduct of their affairs by the light of their own reason, unclouded by the respect for the ancient precedent. ठीक है, तो वो समझते थे कि हम खुद से अपनी अकल इस्तेमाल करके, ये मैंने बताया ना, जैसे साइंटिफिक आउटलुक आ गई थी लोगों का, जो बहुत ज़्यादा जो फिनेटिसिज्म था, जो रिलीजियोसिटी थी, जो थियोसेंट्रिसिज्म था, जो मैंने कहा था ना ह्यूमनिज्म स्टार्ट हुआ था, तो अल्टीमेटली प्योरिटनिज्म में तो दोबारा से रिलीजन डोमिनेट कर गया था, लेकिन ये जो एज ऑफ रीजन है इसमें इन्होंने बिल्कुल ही उसका जो है वो उसको कंट्रोल कर लिया। इवन जॉन लॉक, आपको पता है बहुत बड़े फिलासफर इसी एज में पैदा होते हैं, इंग्लैंड के, काफी बड़ा नाम है जॉन लॉक, द ग्रेट फिलोसफर, हैड ओपाइंड दैट देयर वाज नो वार बिटवीन फेथ एंड रीजन। इवन इन्होंने अलग कर दिया कि फेथ जो है, जो मजहब है, उसको प्राइवेट मैटर तक रखना चाहिए, और जो रीजन है ना, उसको दुनिया को समझने के लिए हमें अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें बाइबल से मदद नहीं लेनी चाहिए। जो हमारे डे टू डे मसाइल हैं या बीमारियां हैं, प्यूरिटन एज थी या रेनेसां था या मिडिल एज, उससे पीछे आप चले जाएं जितना भी, तो जब लोग बीमार होते थे तब भी प्रीस्ट के पास जाते थे। ठीक है, लोगों को कोई मशवरा करना होता था फिलासफिकल, तब भी प्रीस्ट के पास जाते थे। इसी तरह बादशाह जो है वो मुकर्रर होते थे तो भी प्रीस्ट के मशवरों से होते थे। तो पॉलिटिकल मसाइल हों, हिस्टोरिकल हों, फिलासफिकल हों, मेडिसिनल हों, साइकोलॉजिकल इश्यूज हों, हर चीज़ के लिए प्रीस्ट यानी मजहब से मदद ली जाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये लिबरेशन आई, सारी ब्रांचेस साइंस की अलग होती गई और रिलीजन के लोगों से मदद अब नहीं ली जाने लगी, बल्कि अकल और रीजन के बुनियाद पर उन्होंने रिसर्च को यानी प्रमोट किया। He declared in an essay concerning human understanding, ये इनका बड़ा फेमस ऐसे है, human understanding जो है 1690 में लिखा, faith is nothing but a firm assent of the mind, which if it be regulated as is our duty, cannot be afforded to anything but upon good sense, and so cannot be opposed to it. तो जॉन लॉक ने इसका एक अच्छा हल दिया, क्योंकि साइंस और मज़हब के दरमियान एक जो लड़ाई पड़ चुकी थी, उससे नुकसान हो सकता था सोसाइटी को। तो जॉन लॉक जैसे फिलासफर ने उसका सलूशन निकाला कि फेट जो है उसको रीज़न से कोई ख़तरा नहीं है, साइंस से कोई ख़तरा नहीं है, एनालिसिस से कोई ख़तरा नहीं है, या इनको अपोजिंग वे में हमें नहीं देखना चाहिए। It was widely assumed during the 18th century that since every man is competent to decide by reference to his own reason
on any point of the natural or the moral philosophy, every man becomes his own philosopher. ठीक है, हर बंदे के पास अक्ल और समझ है तो वो अपने लिए खुद एक फिलोसफर है. इंडिविजुअलिज्म की भी यहाँ ग्रोथ हो रही है. सो द नीड ऑफ द एक्सपर्ट और द स्पेशलिस्ट वैनिशेस. ठीक है. Moreover, as all men were assumed to be equally endowed with the power of reason, ये भी समझा गया कि सारे लोग जो है वो बराबर अकल और जहानत के मालिक हैं. Dr. Johnson opines that the highest type of the art is that which can be understood immediately, which has the widest appeal and which is free from the expression of the personal idiosyncrasy, which deals with what is general and universal rather than what is individual and particular. जो इससे पहले प्योरिटनिज्म में था, मिल्टन आपको पता है इगोइस्ट है, अपने बारे में लिख रहा है सारा कुछ, अपनी ज़ात और खुदा से ज़्यादा तो वो किसी को अहमियत नहीं देता. तो डॉक्टर जॉनसन कहेंगे कि वो बिल्कुल एक अच्छा पोइट नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी के बारे में नहीं लिख रहा, वो कलेक्टिव ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं सोच रहा. ठीक है, वो मुश्किल बनाता है अपनी चीज़ों को. देयर वाज द टेम्पर of the 18th century, it is that was the temper जो डॉक्टर जॉनसन जिसकी बात करें. If it is called the age of reason, the age of good sense, it was an age which took a legitimate pride in the modern discoveries based upon the observation and reason. जो ऑब्जर्वेशन, साइंस और रीजन, मैंने कहा ना, जो डिस्कवरीज हो रही थी वो सारा कुछ इनको मिला. एंड कंफर्म्ड द बिलीव्स दैट देयर इज एन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द यूनिवर्स. ठीक है, साइंस भी रूल्स डिस्कवर कर रही थी, तो पता क्या चल रहा था, हर तरफ एक ऑर्डर है, हार्मनी है, प्लानिट सिस्टम है, एटम में जाए तो वहाँ एक सिस्टम है, तो पता ये चल रहा था हर तरफ ऑर्डर है, एक सिस्टम है, एक रिदम है, एक हार्मनी है. तो क्यों ना इंसानी सोसाइटी में भी हार्मनी होनी चाहिए, रिदम, एक ऑर्डर होना चाहिए. इंसानी लाइफ में भी रिदम, ऑर्डर, एक चीज़ें होनी चाहिए. रूल ऑफ लॉ भी आगे बढ़ रहा था, आपको पता है, और डेमोक्रेसी डेवलप हो रही थी. बादशाह के राइट्स कम होते जा रहे थे, पब्लिक ज़्यादा ताकतवर हो रही थी. और ये कि बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो रहे थे, तालीम फैल रही थी, स्कूल सिस्टम डेवलप हो चुका था, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी. तो ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि ये कितना माहौल चेंज हो चुका था. तो यही जो ऑर्डर, प्रिसिशन और एक रिदम है और एक हार्मनी है, तो उन्होंने कहा लिटरेचर में भी होनी चाहिए. वो सारी चीज़ें जो बाकी जगहों पे वो देख रहे थे, यानी इट वर्कड ऑन रैशनल प्रिंसिपल्स दैट ईच क्रिएटेड थिंग हैज इट्स अलाउड पोजीशन एंड मूव्ड इन अपॉइंटेड स्फीयर्स. यानी हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे मूव कर रही है, अपने अपने टाइम पे अपनी जगह को फॉलो कर रही है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है. तो माशरे में भी ऑर्डर होना चाहिए, इंसान की लाइफ में भी ऑर्डर होना चाहिए, सोसाइटी में भी. ठीक है, और इवन लिटरेचर में भी वो ये ऑर्डर लिटरेचर में भी लेके आ जाते हैं, जिससे रूल्स प्रिंसिपल्स तय होते हैं जो ड्राइडन ने सेट किए थे. कहा कि फिर कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कोई रूल्स होना चाहिए. जबकि आपको पता है शेक्सपियर कोई रूल्स प्रिंसिपल, कोई सेट पैटर्न की चीज़ों को फॉलो नहीं करता था. Now let us consider the literary characteristics of this age. In the previous ages which we have dealt with, it were the poetical works which were given prominence. Now for the first time in the history of English literature, prose occupies the front position. पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था कि जो पोइट्री है उसको वो अहमियत नहीं मिल रही थी. अब प्रोज जो है वो डोमिनेट करेगी इसके एज के अंदर. न्यू क्लासिकल एज सारा जो है वो डोमिनेटेड है बाय द प्रोज राइटिंग, और नॉवल भी आपको पता है प्रोज राइटिंग की एक फॉर्म है. A large number of the pamphlets, journals and the magazines were brought out in order to cater the growing need of the masses who had begun to read and take interest in these controversial matters. Poetry was considered inadequate for such tasks, and hence there was a rapid development of prose. Prose क्यों develop हुआ? क्योंकि लोगों में तालीम बहुत ज़्यादा हो गई थी, आम आदमी तक बात करने के लिए प्रोज सबसे बेटर मीडियम था. साइंस डेवलप हो रही थी, उसको भी एक सिंपल किस्म का एक मीडियम रिक्वायर्ड था जिसके नजरिए जिसकी तवज्जुह से वो अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सके, बात आगे पहुंचा सके. जर्नल्स आ रहे थे, मैगजीन, न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे. इन सब में कौन सा मीडियम यूज हो सकता था? सिंपल प्रोज, वही डेवलप होनी थी. ऐसे की फॉर्म और ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी. और फिर इसी के साथ हम देखते हैं, और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो कि आ गए थे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपको पता था नहीं. तो सबसे पहले जो चीज़ स्टार्ट हुई वो न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा हो गए. लोगों की डिमांड पूरी कर रहे थे, उन्हें रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे. इनफैक्ट द प्रोज राइटर्स ऑफ दिस एज एक्सेल द पोएट्री इन एवरी एस्पेक्ट. ग्रेसफुल एंड एलिगेंट प्रोज ऑफ द एडिसन एसेज, ऐसे में हमें एडिसन के एसेज मिलते हैं. द टच स्टाइल ऑफ द स्विफ्ट सेटायर्स, the artistic profession of the Fielding's novels, and the sonorous eloquence of the Gibbon's history
ایڈورڈ گبن نے ہسٹری کی بک لکھی, سویفٹ نے سیٹائر لکھے, ایڈیسن نے ایسز لکھے, فیلڈنگ نے ناول لکھے. اینڈ دا اوریٹوریل اسٹائل آف دا برگ, ٹھیک ہے, اور برگ کی اوریشنز کافی فیمس ہیں, یہ پارلیمنٹیرین تھے, ہیو نو ایکول ان دا پوئٹیکل ورک آف دس ایج. تو اتنے بڑے بڑے یہ سارے رائٹر جو کہ پروز میں ورک کریں, کوئی اسپیچز لکھ رہا ہے یا دے رہا ہے, ہسٹری بھی پروز میں لکھی جائے گی, ناول پروز میں لکھے جاتے ہیں, ایسے پروز کی فارم ہے, اسٹائر سارا پروز میں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے پروز فارم جو ہے ہمیں اس ایج میں ڈومینیٹڈ نظر آتی ہے. انفیکٹ پوئٹری آلسو ہیڈ بیکم پروزک. اگر دیکھا جائے تو پوئٹری اٹ سیلف جو ہے وہ پروزک ہو گئی تھی. کیسے؟ بیکاز اٹ واز نو لانگر یوزڈ فار دا لافٹی اینڈ سبلائم پرپسز but like prose, its subject matter had become criticism, satire, controversy, and was also written in the form of the essay, which was the common literary form. ٹھیک ہے, اور جو پوئٹری ہے وہ خود اس کا سبجیکٹ میٹر جو ہے نا وہ پوئٹیکل نہیں رہا تھا. فارم اگر لائنیں پوئٹیکل لکھنے سے آپ کو پتہ ہے پوئٹری نہیں کہلاتی. اگر آپ لائنیں سیدھی کر بھی لیتے ہیں پوئٹیکل, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوئٹیکل ہو گئی ہیں آپ کی چیزیں. پوئٹری لافٹی آئیڈیاز کو کہا جاتا ہے. جب آپ کے آئیڈیاز بڑے ہیں انہیں ہم پوئٹیکل کہیں گے. تو اگر تو پوئٹیکل فارم پوئٹیکل رہ جائے اور کنٹینٹ جو ہے وہ کرٹیسزم ہو, وہ صرف سیٹائر ہو, ٹھیک ہے, وہ صرف پولیٹیکل کوئی میٹر ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کے اندر, تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ پھر سیٹائر ہے, یہ کرٹیسزم ہے, یہ ایک ایسے ہے جو پوئٹیکل فارم میں لکھا گیا ہے. پوئٹری بیکیم polished, witty and artificial, but it lacked fire, fine feelings and enthusiasm and the poetic glow of the Elizabethan age and the moral earnestness of the Puritanism. تو یہ دونوں ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, جو پوئٹک گلو تھا ایلزابیتھن ایج کے اندر, جو جن کی پوئٹری تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنی کمال کی. شیکسپیئر نے پوئٹری کی, پین جانسن نے پوئٹری کی, اور اس کے بعد ملٹن نے پوئٹری کی. تو وہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی. The two main characteristics of the restoration period کیا تھے؟ ریئلزم اینڈ پریسیجن. ٹھیک ہے, ایک تو حقیقی تصویر کشی کی جائے, اس میں کوئی امیجنیشن نہ ہو, اس میں کوئی ایموشن نہ ہو, اس میں کوئی ایگزیجریشن نہ ہو, تو پھر تو پوئٹری تو ختم ہوگی, لافٹی آئیڈیاز تو نہیں ہوں گے. تو ایک تو پریسائز لکھیں گے اور دوسرا ریئلسٹک ہونا چاہیے. Were carried to further perfection during the 18th century. They are found in their excellent form in the poetry of Pope. Alexander Pope کی poetry میں ہمیں دیکھیں تو یہ ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اسی وجہ سے آپ نے یہ ڈیبیٹ کبھی سنی ہوگی کہ الیگزینڈر پوپ کیا ہم اسے ایگزیکٹلی پوئٹ کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ڈیبیٹ اسی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے فارم تو پوئٹری یوز کی ہے, لیکن جو کنٹینٹ ہے وہ پوئٹیکل نہیں ہے. وہ وہی ہے جو جوناتھن سوئفٹ کا ہے, ٹھیک ہے, وہ وہی ہے جو ایڈیسن کا ہے, ٹھیک ہے, وہ وہی ہے جو برگ کا ہے. تو پوپ اور ایڈیسن اور سوئفٹ اور برگ میں کیا فرق رہ گیا؟ صرف فارم کا. ٹھیک ہے, یہ ہنری فیلڈنگ کا ہے, وہ بھی وہی ہے, وہ بھی سیٹائر کر رہا ہے, وہ بھی معاشرے کی کرپشن پہ لکھ رہا ہے, وہی بھی پوئٹیکل چھوڑ کے پولیٹیکل جو ہے وہ میٹر ہیں ڈسکس کر رہا ہے پوئٹری کے اندر. بٹ پوپ however فارم کے لحاظ سے heroic couplet یوز کرتے ہیں in the prose of Addison, who developed it into a clear, precise and elegant form of expression. The third characteristics of this age was the development of satire. جو ایک اور اس کے بنیادی کریکٹرسٹکس میں آتا ہے وہ ہے کہ satire develop ہوتا ہے as a form of literature, which resulted from the unfortunate union of politics and literature. جو سیٹائر بنتا ہے فارمولا یہ ہے کہ جب پالیٹکس اور لٹریچر مکس ہوتے ہیں تو سیٹائر بنتا ہے, کیونکہ سیٹائر کا پرپز آپ کا اپنے جو اپوزٹس ہیں, جو اپنے اپوننٹس ہیں, ان کو آپ نے کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے. دا وگز اینڈ دا ٹوریز ممبرز آف ٹو امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز. یہ انگلینڈ کی دو قدیم ترین پارٹیز ہیں پولیٹیکل, وگز اینڈ دا ٹوریز. Political parties which were constantly contending to control the government of the country used and rewarded the writers for satirizing their enemies and undermining their reputation. تو یہ لوگ جو ہے وہ ریوارڈ بھی کرتے تھے, ایوارڈ بھی دیتے تھے کہ ایک پارٹی کا ممبر جو وہ دوسری پارٹی کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو کرٹیسائز کرے. جیسے ہمارے ہاں آپ نیوز دیکھتے ہوں گے یا کوئی پروگرام دیکھتے ہوں گے, کوئی لازمی بات ہے ہر نیوز میں ہر پروگرام میں ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہی رواج تھا. وگز اور ٹوریز جو ہیں وہ پوئٹس اور یہ سارے لوگ ہائر کرتے تھے اور تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اور اب جب پوئٹری اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی تو وہ اس کا مطلب ہے پوئٹری کا فارم یوز ہو رہا ہوگا, ایکچولی تو وہ سٹائر ہوگا,
ठीक है, एक्चुअली तो वो क्रिटिसिज्म होगा, अपने अपोनेंट्स को नीचा दिखाने की कोशिश होगी, तो हम उसे जो कुछ क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं ये फिर पोइट्री नहीं है, ये बस एक स्टेरिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री यूज की गई है, कंटेंट में उसे हम पोइटिकल नहीं कह सकते, क्योंकि पोइट्री जो है वो है जिसमें लॉफ्टीनेस हो, जिसमें आइडिया हो, जिसमें इमोशन हो, जिसमें ग्रेटनेस हो, ठीक है, और जो डे टू डे छोटे छोटे मामला को ना डिस्कस कर रही हो, या एनिमीज को नीचा दिखाने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पोइट्री, तो हम उसे पोइट्री नहीं मानते। Moreover, as a satire is concerned mainly with finding fault with the opponents, तो satire का क्या purpose है? Finding fault with the opponents, especially जो political satires हैं, is destructive in its intention. It cannot reach the great literary heights. इसका purpose ही destructive है, constructive तो है ही नहीं. Criticism करना है, नीचा दिखाना है. Another important feature of this age was the origin of the development of the novel. एक और जो नई चीज आ चुकी थी वो इस एज से, और इससे आने वाली अब हर एज में हमने जो चीज पढ़नी है वो एक नया जॉनर है, वो है नॉवल आ चुका था। और जैसे अभी मैंने बताया कि एक नई चीज डेवलप हो चुकी थी, वो क्या थी? Origin and development of the novel. This new literary form, which gained great popularity in the succeeding ages and which at present hold the prominent place, was fed and nourished by the great masters like Defoe, Richardson, Fielding, Smollett, and others who laid its secure foundation. तो ये बड़े बड़े नॉवलिस्ट हैं जो इस एक हमें से न्यू क्लासिकल एज में मिलते हैं, और ना सिर्फ यहाँ नॉवल स्टार्ट हुआ बल्कि नॉवल काफ़ी फेमस नॉवल्स जो है वो प्रोड्यूस हुए। The realism of the age and the development of an excellent prose style greatly helped in the evolution of the novel during the 18th century. क्योंकि नॉवल आपको पता है रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी होते हैं, प्रोज फॉर्म में लिखे जाते हैं, और एनालिसिस ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है इसके अंदर। The 18th century was deficient in drama because the old Puritanic prejudice against the theatre continued. यहाँ भी ड्रामा जो है वो लिखा तो गया है, लेकिन ये ज़्यादा मकबूल ना था, और वजह आपको पता है वही प्योरिटेनिक जो प्रेजुडिस है सोसाइटी के अंदर अभी भी चल रहा था, ग्रेजुअली खत्म हो रहा था। एंड द कोर्ट आल्सो विथड्रू इट्स पैट्रोनेज, ठीक है, और कोर्ट जो है वो पैट्रोनाइज भी नहीं कर रहा था। जो एलिजाबेथन एज में आपको पता है कोर्ट ने पैटर्न किया, लोगों ने पसंद किया, तो जब तक कोर्ट पैटर्न न करे आर्ट को, तो उसके लिए सर्वाइव करना समटाइम मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद गोल्ड स्मिथ एंड श्राइडन, ये हमें दो ड्रामाटिस्ट यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अभी हमने नॉवेलिस्ट की बात की भी है, पोइट्स की बात की है, प्रोज आथर्स की बात की, और ये हमारे पास आ जाते हैं दो ड्रामाटिस्ट, वर द ओनली राइटर्स हु प्रोड्यूस प्लेज हैविंग लिटरेरी मेरिट। तो हम सिर्फ इन दोनों के बारे में इस एज में देखेंगे। Another important thing which is to be considered with regard to the 18th century literature is that it was only during the early part of it, the age of Pope, that the classical rules and the ideals reigned supreme, ठीक है। पहले पार्ट में, यानी दूसरा पार्ट ऐसे कह लें ओवरऑल, तो बुनियादें रखी एज ऑफ ड्राइडन में, तो एज ऑफ पोप में जो है ना ये फुल फ्लेज क्लासिकल रूल था, और मुकम्मल जो है क्लासिकल एज थी जिसमें मुकम्मल रूल्स को फॉलो किया गया। इन द लेटर पार्ट, द एज ऑफ जॉनसन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एंड की तरफ जाती है, क्रैक्स बिगिन टू अपीयर इन द एडिफाइस ऑफ द क्लासिज्म इन द फॉर्म ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट इट्स आइडियल्स। और आहिस्ता आहिस्ता उसके एंड पे क्या होता है, ये जो प्रिसीजन है, जो रियलिज्म है, ये जो प्लेन लैंग्वेज है, ये जो प्रोज का डोमिनेंस है, ये सारी चीज़ों के खिलाफ एक रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, और क्रैक्स शुरू हो जाते हैं, ये जो बिल्डिंग है ये टूटना शुरू हो जाती है, क्लासिकल एज खत्म होना शुरू हो जाएगी। एंड द रिवाइवल ऑफ द रोमांटिक टेंडेंसी, और जो रोमांटिक टेंडेंसी है यानी रूल फॉलो नहीं करना जो है, उसकी तरफ जो जाना है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, विच वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। जो एलिजाबेथन एज में खास शेक्सपियर, स्पेंसर में हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, वो दोबारा से सर उठाती हैं, और इससे जो आगे एज आएगी वो है रोमांटिक एज। यानी हमने प्योरिटन से न्यू क्लासिकल में एंटर हो चुके हैं, जिसमें तीन हिस्से हैं, ड्राइडन, पोप और फिर डॉक्टर जॉनसन की एज, तीन हिस्से हैं, और ये जब खत्म होगी तो हम जाएंगे रोमांटिक एज के अंदर, या न्यू रोमांटिक एज के अंदर, क्योंकि वो कहेंगे जी एलिजाबेथन पीरियड पहला रोमांटिक पीरियड है। As the 18th century is a long period, it will be dealt with in different chapters entitled The Age of Pope, The Age of Johnson, 18th Century Novel, and
18 سینچری ڈراما. تو ہم اسے پارٹس میں اسٹڈی کریں گے, تھوڑے تھوڑے پارٹس کے اندر. یعنی پوپ کو الگ سے دیکھیں گے ایج میں, جس میں ہم پوئٹری اور پروز اور کرٹیسزم دیکھ لیں گے. ایج آف جانسن میں بھی یہ چیزیں دیکھیں گے. ناول کو ہم الگ سے پڑھیں گے کہ وہ کیسے اس کی برتھ ہوئی, کون کون سے ناولس تھے, اور ڈراما کو بھی ہم الگ سے دیکھیں گے.